Good morning. Today again I will teach you about binary files, and for binary files I have already taught you about classes, how to define a class, and with the help of a class we can define object. A class is a structure whereas the object is an instance of the class. This much you know. Now today I will teach you how to create a file, how to write records in a file. Okay? Grammar, you should know. The function, you should know which function you have to use to read and write data in a file. So I am sharing a screen for you so that you'll come to know what exactly I'm teaching you here. So I am sharing a screen and sharing Python for you. Python IDLE. So last time I have saved the program. So I am opening that, but I will explain you everything. I have saved the program with the name EMP-Proj. And I am opening now. Now, all of you, those who were absent, Kritika beta, आपके लिए revision है. So, first and foremost thing, you have to import pickle. This pickle is a library or module which gives us the module and function of files, binary files. Now what we are doing after that, import pickle is clear कि जो function आपके आएंगे वो इसी के through आएंगे. So this has to be there, otherwise it will show an error. मैं दिखा भी दूंगा, error आ जाएगी. Now we are taking class and the name of the class is employee. Okay? We are declaring a class named as employee. Then we are having a function def. Def keyword is used to define a function and the function name is enter. Now you have to use a keyword self. Kritika, beta self की definition लिखवा दी थी ना previous class में. Say, unmute yourself and give reply. Quick. Kritika girl, are you there? Kritika. Lavish, have you seen my previous video? Saturday वाला सर video? वो सर नहीं सैटरडे नहीं, जो हमने लास्ट वेडनेसडे को क्लास ली थी लास्ट वीक में, उसी में लिखा लिया था. तो सैटरडे को मैंने जो वीडियो डाला था वो नहीं देखा? नहीं सर, वो तो अभी नहीं देख पाया अक्षज, सर. पर हमने सेल्फ की डेफिनेशन तो लास्ट वीक ही लिख ली थी जो वेडनेसडे को क्लास ली. ओके ठीक है, अच्छी बात है, गुड. यू हैव ऑलरेडी रिटन विद द क्लास, करेक्ट, नो प्रॉब्लम. सो कृतिका इज नॉट देयर और व्हाट? self.eno int input enter employee number and so on. तो ये क्लास बनाना मेरे ख्याल से सबको आता है. शो योर थम्स अप सो दैट मुझे पता चल जाए कि आपको क्लास बनाना आता है. टिल हियर अक्षय इज ओके, लविश इज ओके, राघव नॉट क्लियर. राघव, हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू डिक्लेयर अ क्लास? सर एक बार थोड़ा मतलब रिवाइज जरा सा. Okay. Class employee, def employee. This is the name of the class. Then we are defining a function. इस बार बेटा जो मैंने क्लास बनाई है इसमें init वाला फंक्शन नहीं लिया है. Redmi has entered the waiting. Who is Redmi? I don't know the Redmi, so I will not allow. Next is your disk. Okay. Who is Redmi? I don't know Redmi. Okay. Disk, ENO, self.eno and so on. तो ये आपके राघव, अब बेटा पूरा बताने के लिए है कि जब भी आप किसी वैल्यू एंटर कराओगे या असाइन कराओगे क्लास में, देन उसके आगे सेल्फ लगाना पड़ेगा. इतना सीख लो. क्यों? क्योंकि जब हम एक ऑब्जेक्ट EMP बनाएंगे तो उस EMP का ENO उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ENO एक्सेस होता है. EMP इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास. मैंने बहुत ढंग से पढ़ाया था. प्लीज चेक माय वीडियोस, आपको सब चीज समझ में आएगी. आप शॉर्ट में ये समझो
कि एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में ENO, ENAME, BS, DA टोटल किया, बस सबके साथ सेल्फ लगाया है। अभी आप इतना ही समझ सकते हैं, आप पूरा वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा, अदरवाइज मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। फिर क्लास पढ़ाने के लिए कम से कम एक क्लास तो चाहिए ही मुझे। डेफ डिस्क तो डिस्प्ले करने के लिए तो सिंपली जैसे प्रिंट करते हैं, बट इतना ध्यान रखना कि सेल्फ लगाया है, इसलिए कि हम ऑब्जेक्ट के थ्रू सब यूज करेंगे। नाउ लवेश, Akshaj, Kritika, Raghav, all of you. Now see here, we are making a function create. Function create क्यों use कर रहे हैं? जैसा कि text file में create use किया था to write text, इसमें object को write करने के लिए create use करेंगे. So for that I am opening a file. The file name is emp.dat. WF is the object, open is the function. Okay, open function use किया, emp.dat is the, and WB, this is the binary. W मैंने पहले रखा है different types of modes. So W means write, B means binary, write binary. अब ये थोड़ा सा लॉजिकल है, CH चॉइस वेरिएबल लिया है, while CH equals to yes, मतलब जब तक आप प्रेस Y करते रहोगे उतने समय तक वैल्यू एंटर होती रहेगी। तो पहले मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू emp.enter किया, इससे वैल्यू रैम में एंटर हो जाएगी। Once the value is entered, please check my previous video, आपको सब क्लियर हो जाएगा। emp.enter से वैल्यू एंटर हो गई। pickle.dump, dump फंक्शन जैसे कि आपका राइट फंक्शन था टेक्स्ट फाइल के लिए, यहाँ पे dump फंक्शन है। अब we are using the module pickle here, so that we will write pickle.dump. dump मतलब राइट, dump अपना ऑब्जेक्ट को डंप कर रहे हैं फाइल में, ऐसे समझ लो। emp is the object किसके अंदर? w फाइल के अंदर। इन अदर वर्ड्स emp.dat में राइट हो जाएगा। इतना समझ में आया? अपन ने एक फाइल को ओपन किया, उसमें कुछ वैल्यू एंटर कराई रैम से, और रैम से हार्ड डिस्क पे राइट कर दिया। जब तक हार्ड डिस्क पे राइट नहीं होगा डेटा, आपका डेटा परमानेंटली सेव नहीं होगा। ओके, ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग हियर while CH equals to yes, इसलिए लिया है कि जब आप Y प्रेस करोगे बेटा तो लूप में कंटिन्यू करेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि सपोज अ पर्सन इज सिटिंग ऑन रिजर्वेशन काउंटर, तो क्या वो एक ही टिकट बुक करेगा, या वो जब तक चाहे तब तक कर सकता है, जब तक उसकी ड्यूटी है। तो जब तक वो प्रेस Y करता रहेगा, नए नए ऑब्जेक्ट की एंट्री होती रहेगी, इसलिए ये लूपिंग की है। एक वाइल की यस करते ही फिर से वैल्यू एंटर होगी एंड फिर से चलेगा। मैं एक बार इसको रन करके दिखा रहा हूँ। ये अभी लिस्ट 1 मिनट के लिए छोड़ दो, ये लिस्ट को मैं कमेंट में कर देता हूँ, ट्रिपल कोट्स। ये सब चीजें मैं समझाऊंगा आपको, ये पूरी एक क्लास है, समझा चुका हूँ। अब मैंने यहाँ पर मेन लिया है, ये पार्ट मेन से है, याद रखना ये मेन है बेटा। कमेंट दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एंटर योर चॉइस। अब अगर अपन ने 1 डाला तो क्रिएट चलना चाहिए, और बाकी चीजें मैं नहीं ले रहा हूं, ये भी मैं बंद कर रहा हूं। ठीक है, एंटर ये चॉइस 1 तो क्रिएट लिया, while C लेस देन इक्वल्स टू 2 किया है, अभी 1 कर दो। अब मैं इसको एक बार रन करके दिखाना चाह रहा हूं आपको। तो वेटिंग तो नहीं है? नहीं, ओके। Now I am running this program, just see what is the result coming. इंडेंटेशन में अब ये प्रॉब्लम तो देगा, क्योंकि कमेंट वेमेंट के चक्कर पड़ गया ना यार। अब मैं डिलीट ही कर देता हूँ, हटाओ यार। रन इट, ओके। एंटर योर चॉइस 1 आया, ये कहाँ से आया? इस स्टेटमेंट के कारण आया। एंटर योर चॉइस, क्लियर? एंटर योर चॉइस। अब आपने चॉइस नंबर 1 किया तो 1 में कहा जाएगा? क्रिएट फंक्शन पे, क्योंकि आपने क्रिएट फंक्शन को कॉल किया है। प्रेस एंटर। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है? एंटर एम्प्लॉय नंबर 1। आपने लिख दिया सपोज सर रजा, फिर उसने पूछा है सैलरी, आपने 5000 रुपये दे दिए, ठीक है। कंटिन्यू करना है, यस और नो इसीलिए किया था
स्मॉल वाई करने पे ये कंटिन्यू करेगा। एम्प्लॉय नंबर 2 मैंने सर आर्नल्ड दे दिया और उसके बाद उनकी कुछ सैलरी दे दी और एंटर। अब आपने कह दिया नो नहीं चाहिए तो ये खत्म हो गया। प्रेस बाय टू, अब एंटर एम्प्लॉय नंबर वगैरह ये यहाँ पर प्रेस बाय टू कंटिन्यू। अब ये सब चीज़ें मैंने हटा दी हैं इस कारण से। तो मतलब इतना सा था कि जब यस करोगे तो कंटिन्यू करेगा, नो करोगे तो एग्जिट कर जाएगा। मैं इसको दिखा रहा हूँ पूरी तरह से बना के, फिर से एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन जो मैंने बताया था अब मैं समझा रहा हूँ कि आपने जो डेटा राइट किया है हार्ड डिस्क पे उसे देखना है, व्यू करना है, डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए मैंने फंक्शन बनाया लिस्ट। फाइल जैसे यहाँ ओपन की थी यहाँ, मगर मोड को चेंज किया। यहाँ पे राइट मोड है और यहाँ पे रीड मोड है। हार्ड डिस्क से ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए, हार्ड डिस्क पे राइट करने के लिए डंप फंक्शन है और हार्ड डिस्क से रैम में लाने के लिए ताकि वो डिस्प्ले हो सके लोड फंक्शन है। सो नाउ वी विल लर्न हाउ टू डिस्प्ले। तो पहले फाइल को ओपन किया, फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट बनाया है ना, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। या तो आप यहाँ पे बना लो एक बार, या फिर उसके बाद जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल आपने बना दिया था, मगर फिर मैंने एक बार और बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। ट्राई एंड एक्सेप्ट, ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। ये वैसे पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है मगर इसके बिना प्रोग्राम चलता भी नहीं है, तो दिक्कत आती है इसलिए मैंने पढ़ाया। ट्राई और एक्सेप्ट, ट्राई एंड एक्सेप्ट आर नोन एज एरर हैंडलिंग स्टेटमेंट। मतलब आपका अगर कोई एरर भी आ जाए उसके बाद भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहे, तो ये सारे एरर हैंडलिंग स्टेटमेंट कहलाते हैं या एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टेटमेंट कहलाते हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब भी होता है एरर को हैंडल करना। तो हमने क्या लिखा कि ट्राई और एक्सेप्ट। तो ट्राई जो है इसके बीच में अपन अपना प्रोग्राम लिखेंगे और एक्सेप्ट में एरर हैंडलिंग स्टेटमेंट लिखेंगे या फाइल क्लोज वगैरह करेंगे। तो एक्सेप्ट के साथ जो एरर हैंडलिंग है एंड ऑफ फाइल एरर, अगर आप एंड ऑफ फाइल पे नहीं पहुंचते हैं तो ये एरर को संभालेगा। समझ में आई बात? ये नहीं होगा कि प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। तो टू कंट्रोल द एरर फॉर एब्रप्ट टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम, कि अपने आप बीच में बंद ना हो जाए, अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टेटमेंट, एरर हैंडलिंग स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। दैट इज ट्राई एंड एक्सेप्ट। ट्राई के बीच में प्रोग्राम लिखेंगे, एक्सेप्ट के साथ एरर हैंडलिंग स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हमारा एरर हैंडलिंग स्टेटमेंट है एंड ऑफ फाइल एरर। अगर एंड ऑफ फाइल एरर आ भी जाती है तो भी प्रोग्राम चलेगा। ओके, नाउ आई विल ट्राई टू कम टू द जो मैंने यहाँ छोड़ा था वहां पर आना चाहता हूँ। नाउ रन दिस प्रोग्राम। ये आपको क्लियर हुआ? ओके, अभी ये नहीं समझाया था। ओके, वाइल ट्रू। अब वाइल ट्रू क्यों लिखा? जब तक कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब इफ वी हैव 5 रिकॉर्ड्स, जस्ट नाउ वी हैव 2 रिकॉर्ड्स, तो जब तक हमारे रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक वाइल का किस पे चलता है? ट्रू कंडीशन पे। तो जब तक रिकॉर्ड्स आते रहेंगे कंडीशन ट्रू रहेगी। तो जब तक कंडीशन ट्रू है लूप चलेगा। जैसे ही एंड ऑफ फाइल हो जाएगी लूप बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बंद होगा क्योंकि वाइल ट्रू कंडीशन पे ही चलता है। जैसे ही यहां से पता चला कि फॉल्स हो गया, एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गए, तो आपका बंद हो जाएगा वो, तो ट्रू पे चलेगा। मतलब फाइल कंप्लीट होने के मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, जैसे ही फॉल्स होगा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। नाउ आई विल रन एंड शो इट टू यू। ओके, एंटर योर चॉइस। मैंने 1 कर दिया था, आई विल नॉट राइट 1। इतना याद रखना बेटा कि एक बार डेटा राइट हो गया तो आप कभी भी उसे व्यू कर सकते हो। नंबर 2, कुछ प्रॉब्लम आई थी, मैं फिर से चला रहा हूं। एंटर 1, एंटर एम्प्लॉय नंबर 1, सर रजा, सैलरी कुछ भी दे दो, यस, कंटिन्यू। एंटर एम्प्लॉय नंबर 2, आर्नल्ड सर, सर आर्नल्ड, कैप्स स्मॉल कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू है। ओके, नो। अब चॉइस नंबर 2 डाला तो आप देखिए ये डेटा जो एंटर किया था वो आ गया। अब सपोज आपने यहाँ 6, 7, 8 करके एग्जिट कर दिया, यहाँ से बाहर आ गए, आप चले गए, दूसरे दिन आप आए
आपने अपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया, रन किया, आपको फिर से डेटा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए डेटा फिर से आ गया, हमने कोई एंटर नहीं किया है। जितनी भी बात चाहो इसे डिस्प्ले करते रहो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आपको फिर से मैं कह रहा हूँ पुरानी वीडियो ज़रूर देख लेना, नहीं तो दिक्कत आएगी। अक्षय गुड। लवेश एक बार ज़रूर वीडियो देखना, अदरवाइज मैंने अपनी कोशिश की है समझाने की। डंप राइट करने के लिए और लोड करने के लिए, मतलब हार्ड डिस्क से रैम में लाने के लिए। मतलब ये रीड हो गया और वो मतलब राइट हो गया, सेम है, बस नाम बस अलग अलग है। क्योंकि अपन बाइनरी फाइल पढ़ रहे हैं। बाइनरी फाइल इज अ फाइल ऑफ ऑब्जेक्ट, रिमेंबर दैट। अब मैं एक प्रोग्राम और बनाऊंगा ताकि कृतिका नहीं सोचे कि सर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं आज। सो टुडे आई एम गोइंग टू राइट अ फंक्शन, ऑल ऑफ यू राइट इट, राइट अ फंक्शन टू सर्च अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। बेटा आप ध्यान से सुनो, ये आपके प्रोजेक्ट बनाने में काम आएंगे और फ्यूचर में जिंदगी भर ये काम आएंगे। सपोज आपने अपना रिजल्ट देखना है, तो क्या सबके रिजल्ट देखते हो? ये तो सारे वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, अरनर सर को भी डिस्प्ले कर रहा है, रजा सर को भी कर रहा है। तो अगर आपको सिर्फ अपना रिकॉर्ड देखना है तो आप सिर्फ अपना रोल नंबर डालोगे। जैसे सीबीएसई में रिजल्ट आया, आपने अपना रोल नंबर डाला, आपका रिजल्ट आ जाएगा। या कोई और कंडीशन है तो वो भी डालनी पड़ेगी। तो सिंपल लेके चले, रोल नंबर डाला। इसमें हम एम्प्लॉय नंबर जिसका डालेंगे उसी की वैल्यू आनी चाहिए। दैट मीन्स वी हैव टू मेक अ प्रोग्राम ऑफ सर्च। बेसिकली सर्च भी एक डिस्प्ले प्रोग्राम है। सर्च इज नॉट अ डिफरेंट प्रोग्राम, रेदर इट इज सिंपली अ डिस्प्ले प्रोग्राम और द लिस्ट प्रोग्राम। ओके, क्वेश्चन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू सर्च अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड from the binary file emp.dat. Write a function to search a particular record from the binary file emp.dat. कॉपी, देखो मैंने सॉरी, यहां से लेके यहां तक मैंने कॉपी मारा। आप देखना प्रोग्रामिंग पे बहुत कमाल के नहीं होते कुछ नहीं, एक बार प्रोग्रामिंग सीख लो सब आसान होता है। कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया। अब प्रोग्राम क्या दिया है बेटा आपको? सर्च। देखते देखते ये प्रोग्राम कितना बड़ा हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। SEARCH, सर्च। फाइल का नाम है, आप आर फाइल रखना चाहो, आप फाइल का नाम चेंज कर दो, SF, थोड़ा सा डिफरेंट दिख जाए, सर्च फाइल, ये वही रहेगा। अब यहाँ पर आप लिखो एक स्टेटमेंट, सर्च एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल्स टू INT, एंटर एम्प्लॉय नंबर टू सर्च। Enter ENO to search. Enter ENO to search. Enter ENO to search. Okay. Enter employee number to search. And then what I will write it here, I will simply write enter employee number to search, and then I will simply write here if, ध्यान देना, if SENO, पहले तो लोड कराए, सॉरी पहले इसको लोड कराओ, बिना लोड किए हुए कैसे पता चलेगा कि क्या है? लोड करा लो, डिस्प्ले मत कराना। इफ SENO इक्वल्स टू EMP.ENO। नाउ EMP कहां से आया? ऑलरेडी डिक्लेयर्ड क्लास। ऑब्जेक्ट लोड होके EMP में ऑलरेडी स्टोर हो चुका है। ऑब्जेक्ट लोड होके EMP में ऑलरेडी स्टोर हो चुका है। If a search employee number is equals to EMP.ENO, then we are going to display it. Enter.
सो अब इस प्रोग्राम में जिस एम्प्लॉय नंबर को आपने एंटर किया है उसी का रिकॉर्ड सर्च होकर डिस्प्ले होगा. रन मॉड्यूल. ओके, इनपुट नहीं लिखा, यू हैव टू राइट इनपुट आल्सो. Input. One more thing you have to do here, that is else if C equals to 3. Third choice है ये. What do you have to write? Search function you have to call. Def search. Okay, and this condition also you have to increase to 3. क्लियर हुआ? बार बार आपको यहाँ पे C is equals to फर्स्ट टाइम के लिए है, पर जब आप लूप में आते हैं तो फिर से एंटर कराना जरूरी है. Now you run this program. Okay, now we are entering choice number 3, not 1 not 2. 2 करेंगे तो फिर से रिकॉर्ड आएगा. Employee number to search. Suppose employee number 2. What it is showing, RF is not defined. अपन ने चेंज किया, we have changed it here SF, so we'll change it to SF and then run this program. Enter your employee. Then we are entering employee numbers. Suppose we are entering employee number 2. The employee number 2 is entered here. And the result is coming here as after employee number 2. What is coming here? Employee number 1 and employee number 2 both are coming. That is the choice number 2. But choice number 3 पे ध्यान देना. Here search 2. Enter. RF is not defined. RF is not defined. Again it is showing where it is. We are taking RF where we are taking RF here. So we have to change this to SF. What I will do here, run it. Come on, run. Okay. एक काम करते हैं, इसको पहले बंद कर देते हैं. Run the program. Choice number 2. 1 Sir Raza, 2 Sir Arnold. This is okay, display. Now third I am taking here search. So only Sir Arnold is coming. मान लीजिए आपको डिस्प्ले नहीं कराना है, ओनली सर आर्नल्ड करना है. रन कर लो फिर से, रन मॉड्यूल. और आपको एंटर चॉइस नंबर 3 दिया एंड 1. ओनली सर रजा की इंफॉर्मेशन विल कम. दिस इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोग्राम. आई एम टीचिंग यू इन योर सिलेबस. नॉट मच इज देयर, इवन क्लास इज नॉट देयर. They have reduced the syllabus, but actually they should have given the class. Anyway, not given, I am teaching you. Lavish, is it clear to use search program? Search Yes, a read program. Only the thing is, you have to enter the employee number which you want to find and then check the condition, it will display. Clear hai yahan tak? I will take Yes, one more program. Now the problem of this create is, once you rerun the create program, I think I have taught with the append, this one, text file also. Append, add more records. And remember, add more record is also not a great thing. What I am doing here, just see here. I am simply copying it. Copy and then pasting it here. And instead of create, I am giving the name as append. This is the last program I am teaching you for today's class, append. WF open emp.dat wb ch equals to while ch equal emp.enter pickle.dump. Now, instead of wb, what I will use? A for append, ab. And then I will call the function. See, so quickly I have made the function. Elif C equals to 4 and then append. आपका ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो रहा है. Add more records. Enter your choice. ठीक है.
आप हर प्रोग्राम फंक्शन चलाने से पहले उसके ऊपर एक मैसेज भी डिस्प्ले करा सकते हैं, सच एज मैं यहाँ डिस्प्ले करा दूं मैसेज प्रिंट टू क्रिएट अ फाइल, है ना। इसके ऊपर मैं मैसेज प्रिंट करा दूं तो इस आपके रिजल्ट में भी आएगा, प्रिंट टू डिस्प्ले अ फाइल, ठीक है, नहीं सॉरी, टू ऐड मोर रिकॉर्ड्स, इन द फाइल। समझ में आ रहा है? सो जब आप रन करेंगे तो ये दिखाएगा कंडीशन। अभी मैंने यहाँ क्या क्या चीजें कर दी, अपेंड बना दिया, ओनली वन चेंज आई हैव मेड, W की जगह A, रेस्ट सेम। देन कम यू विल कम C की जगह 3 की बजाय 4 चॉइस कर दें ताकि वो 4th वाला ऑप्शन भी चल जाए। नाउ विल रन द प्रोग्राम। आप समझो, चॉइस नंबर 2 ये रिकॉर्ड है। अगर आपने गलती से चॉइस नंबर 1 दबा दिया, जो मैं अभी दबा रहा हूं, और मैंने लिख दिया एम्प्लॉय नंबर 1 सर रजा एंड कुछ सैलरी दे दी, नो, अब डिस्प्ले करो तो ऐसा नहीं हुआ कि आर्नल्ड सर रहेंगे, आर्नल्ड सर डिलीट हो जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप मेरी बात को समझ रहे हो? अब रन किया मैंने, चॉइस नंबर 1 नहीं दबाऊंगा, मैं 2 देख लेता हूं कितने रिकॉर्ड है, 1 रिकॉर्ड है। अब मैं चॉइस नंबर 4 दबाऊंगा ताकि मैं और रिकॉर्ड, तो टू ऐड मोर रिकॉर्ड्स इन द फाइल, ये फंक्शन जो चला ऐड मोर रिकॉर्ड्स के लिए। एम्प्लॉय नंबर 2 डाला और यहाँ पे अब डाल दिया लविश को, सैलरी दे दी बहुत सारी, काफी है लविश अभी के लिए, नो, एंड एंटर। तो व्हेन यू विल press 2, you will see that 1 is also coming and 2 is also coming. Suppose you have again entered 4 and this time you have entered employee number 3 and Raghav को मैं बहुत कम सैलरी दूंगा, 300 रुपीज बहुत है, राघव नाराज हो जाएगा। ओके, नहीं करना है, नो, एंड नाउ आई विल डिस्प्ले। सो अपेंड का फायदा आपने देखा कि रिकॉर्ड ऐड होता चला जा रहा है। चॉइस नंबर 3 2 डिस्प्ले हो गया, ठीक है। चॉइस नंबर 3 4 ओनली पर्टिकुलर, एंटर एम्प्लॉय नंबर टू सर्च, एंटर योर चॉइस, ओके, एंटर एम्प्लॉय नंबर टू सर्च 4, एंटर योर चॉइस नंबर 4। टू ऐड मोर रिकॉर्ड, चाहिए कुछ गड़बड़ हुआ था, टू ऐड मोर रिकॉर्ड्स, चलो 5 कर लेते हैं। आई विल टेक कृतिका, ओनली गर्ल इन द क्लास, कृतिका, ओके, कुछ सैलरीज को भी दे देते हैं, ठीक है, एंड नो। व्हेन यू विल डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, नाउ सी सो मेनी रिकॉर्ड्स वी हैव। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा, अभी इसको खत्म कर रहे हैं, कैंसिल, इसको बंद करते हैं पहले, ओके, फिर एक बार रन करके दिखा देते हैं फाइनल, एंड आई विल क्लोज द प्रोग्राम, रन। नाउ सी हियर चॉइस नंबर 2 पे इतने सारे रिकॉर्ड आ गए। अब अगर आप सर्च कर रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर 5 डाला है, याद रखना 5, तो कृतिका की इंफॉर्मेशन आ गई। प्लीज नोट डाउन द प्रोग्राम और टेक द स्क्रीनशॉट, और इट इज अवेलेबल देयर। सो इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाकी के स्क्रीनशॉट ले लो और खत्म करो। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बेटा।